this is about the single national. मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ताकि वो लोग जो नहीं है उनको कल की तरह हम दे दें। जी जी। Okay. So तो ये basically सॉरी, this is all. इफ यू वांट टू शेयर द स्क्रीन योरसेल्फ और आगे पीछे जाना चाहें तो वो भी कर लें, अदरवाइज यू कैन टेल मी व्हिच सेक्शंस टू गो टू। मैं स्क्रीन शेयर छोड़ूं आपको दूं? No problem. It's perfectly okay. जी। It's based on the single national curriculum related to early childhood education, and what I have perceived that it has been modified according to the culture and the traditions of Pakistan and according to the societal needs of Pakistan. Because when I was working in Muscat, the curriculum over there of early childhood was quite different from this one that you have shared in the. अच्छा Yes. अच्छा, really? That's बल्कि more related. हाँ, बल्कि वो बाद में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन जस्ट हैविंग अ लुक कि किस तरह से। Yes, definitely. क्योंकि मैंने तो अब तक जितना ओवरऑल वर्ल्ड का पढ़ा है तो वो मुझे लगता है कि सब बात एक ही तरह की करते हैं और बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोई उसमें सक्सेसफुल होता है और कोई नहीं होता, मुझे ये फील हुआ है। तो बट if there is a difference, significant difference in the philosophy or the principles? Well, there is no significant difference, but the school with which I am working online these days, I'm working as a volunteer with a school in Muscat these days. I'll tell you the whole story why I moved on from being paid to being a volunteer, but that's a different story. But anyhow, the only thing is that they are following IB curriculum. Generally, what they are preferring is the IB curriculum, and the IB curriculum is not so much defined as this curriculum. They just have general objectives in that that we need to follow, and they are based on skills of children. They just give the skills that you need to teach to children, and we need to design the syllabus ourselves. हम लोग free हैं, we are free to design the syllabus and teach in the way we feel like teaching. अच्छा. So we have the liberty. Exactly, we have the liberty. They have never commented on my lessons. Why have you made this activity? Why have you brought this chart or this storybook? Because they just want me to focus on the skills. नहीं, so do they monitor के skills किस तरह से आप लोग manage करती हैं, या skills बाकी develop हो रही हैं या outcome है, इसको monitor करते हैं कि इसको भी नहीं? जी, वो monitor करते हैं. They ask us for the weekly planning as well as the learning outcomes. They do check on. Sorry, I cannot hear you. Following that app. आवाज का कुछ हो गया था problem. Yes, can you hear me now? जी जी, so they are following the Dojo app, and on which we have to post our learnings and our worksheets every week. Sahi. And one more thing is that they don't force us to meet weekly learning objectives. They ask us to repeat the weekly learning objectives if we are unable to fulfill them, because they don't believe in dragging the kids to meet certain goals within a specific period of time. Plus ये कि अगर वो उनका पिछला concept अगर नहीं वो strong हुआ या एक चीज नहीं उन्होंने master की, तो there is no point in moving on to the next, जो कि हमारे यहाँ पे होता है. जो कि यहाँ पे होता है मिस. और मैंने ये चीज देखी एज ए ट्रेनर. मैं कितनी इलाकों में गई हूँ और बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो मैं नारोवाल में भी गई हूँ, और वो यही कहते हैं कि हम टीचर्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमने अगर एक वीक में कोई चीज रिपीट करवा दी पिछले वीक की, तो वो इसे डिस्क्वालिफिकेशन लेते हैं टीचर के पार्ट पे. हाँ, कि नहीं वो कंप्लीट ही कर सके अपने टारगेट. तो ये मसला है. और उसमें आप ये देखिए कि टीचर जो है वो कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. कई चीजें हमें वाकई हम बच्चों के साथ रिपीट करनी पड़ती हैं. नहीं, और मैं तो ये देख रही हूँ कि जो रिस्पेक्ट और जो यहाँ पे इस तरह से बच्चों के लिए मेंशन्ड है, वो बेसिक राइट्स और वो बेसिक रिक्वेस्ट वो रिस्पेक्ट जो है, अगर टीचर को नहीं मिल रही तो व्हाट्स द पॉइंट? what are the kinds of examples they are setting? और फिर obviously के बच्चे बड़े perceptive होते हैं, they notice these things, how a certain adult is treating the other adult. Exactly. और फिर टीचर्स भी हमें जैसे पता है कि बचपन में कभी कभी टीचर्स जो हैं, जब when they are dissatisfied, they share that dissatisfaction with each other in front of children, and children notice that, and that kinds of changes the environment of the school, of the classroom, that collaborative environment is not present anymore. फिर वो एक forced environment बनी रहती है. तो I think
दैट इज द मेन डिफरेंस, कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स तो चीज एक बना देते हैं, बट हमारे जो स्कूल हेड्स हैं और जो हेड मिस्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, they have a different vision, curriculum has a different vision, teachers come from a different background or different experience, तो ये एक amalgamation अजीब सा बन जाता है. हेलो, जुजाजा की आवाज बंद हो गई है. अच्छा. Yes, I'm listening to everything. I agree with that. जी जी, अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि वो डिस्कनेक्ट हो गया था. नहीं, not at all. I'm here. I'm listening to everything. सही, now one सही. thing is that Miss, I think we have restricted our teacher more as compared to those countries. Because currently I'm not working in a Pakistani system. It's an Indian system, and it's an Omani system. Yes, there is no Pakistani over there. No Pakistani, not even a single Pakistani, I think, is over there. But what I've observed, they give a free hand to the teachers. They just ask them to meet certain learning objectives, for which they have a unit plan. The unit plan is meant for all the teachers to follow. If you are meeting those skills in any way you feel like you are the best teacher. Secondly, even if some topics are left, that's okay. You just need to teach them the skills. That's more important to them. सही. We are focusing on topics and नहीं, हम टॉपिक्स भी वही मैं देखती हूँ, एंड दोज आर द टॉपिक्स व्हिच डोंट इवन स्टे विद अस. मसला तो यहाँ है ना, या तो हो कि वो बहुत कोई इतने इंटेग्रल हैं इस तरह की चीज के जो फ्यूचर में हमने सीखने हैं. अब ये देखें, ये एम्स ऑफ एजुकेशन मैंने खोले हुए हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2006 में इसी डॉक्यूमेंट में पेज 16 पे दिए हुए हैं. टू एजुकेट पाकिस्तानीज टू बी सीकर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव. यानी कि ऑन पेपर तो वो चीजें लिखी हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में एक बिल्कुल शक्ल ही बदल जाती है. और फिर ये देखें कि नेशनल लेवल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है जी? empathetic and patient participants, contributors towards building harmonious and tolerant society. तो ये चीजें तो हमारे अपने स्कूल्स में ही जो है वो नजर नहीं आ रही होती ना हमें. तो मकसद अब यही है कि वी एज प्रैक्टिशनर्स हम और एक और चीज, हमारे टीचर फेवरेटिज्म बहुत करते हैं. बहुत फेवरेटिज्म करते हैं मिस. बिल्कुल ऐसे ही है. इतनी सिफारिश है, आप ये देखें कि इवन पाकिस्तान स्कूल मस्कत में पूछा जाता था हर दूसरे टीचर से कि आप किसके रेफरेंस पर आए हैं. आई थिंक मैं चंद एक टीचर्स में थी जो किसी के रेफरेंस पर वहां पे नहीं गई हुई थी. आई वाज थ्रू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन व्हिच इज अ रिक्रूटिंग एजेंसी. लेकिन सिफारिशी निजाम, लाइक 90% टीचर सिफारिश पे हैं वहां पे. तो हम लोग फिर क्या फेयरनेस एक्सेप्ट कर नहीं, लाइक एनी काइंड ऑफ गुड स्कूल सिस्टम इन पाकिस्तान टू, कि यहाँ भी इस तरह दोनों चीजें होती हैं. यहाँ पे भी वही है. आप ये देखिए कि बीकन हाउस और लाहौर ग्रामर में भी सिफारिशी निजाम है. मुझे खुद फेस करना पड़ा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई रेफरेंस है यहाँ पर. सही. सो दैट इज द सैड रियलिटी. तो लेकिन यही अगेन वो जिस तरह हम रिपीटेड यही बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे इंटेंट जो हमारा है कि वो हम एज टीचर्स जो है अपनी प्रैक्टिसेस को इस तरह से डिफाइन करें कि हम चेंज ला सकें, या इसको किसी तरह से दूसरों तक डिसेमिनेट हम इस तरह से कर दें. अब ये जिस तरह आपने बात की ना कि स्किल डेवलपमेंट पे सारा फोकस है, तो अगर तो ये एसएमसी के भी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए तो इसमें भी देखें हम स्किल फोकस कितनी है. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात, सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंस, लाइफ लॉन्ग स्किल्स, एक्टिव लर्निंग, सेल्फ इनिशिएटेड प्ले, डिसीजन मेकिंग, मॉरल एथिक्स, सिविक सेंस. तो यहाँ पे कोई टॉपिक जो है दैट इज नॉट द फोकस, द कंटेंट इज नॉट द फोकस ऑब्जेक्टिव्स में देखा जाए. लेकिन फिर वो जब फिर एक गलत तरह से उसको इंटरप्रेट करके चैप्टर्स को और कोर्स को, सिलेबस को कवर करवाने को अहमियत ज्यादा दे दी जाए और इन ऑब्जेक्टिव्स के हासिल करने को आप कम अहमियत दें, तो आई थिंक दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग. और ये हम रिपीटेड इस बात को डिस्कस कर भी चुके हैं. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. एसएनसी तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो उसमें हम तो प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं. और अब बच्चे को पता ही नहीं है, साइंस में 12 चैप्टर्स हैं, 12, और 2 क्लास में उनकी उर्दू में कोई वाकफियत अम्मा थी.
सही में 2 चैप्टर आधा से, और अब एकदम से उन्हें इतनी मुश्किल 12 चैप्टर, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है, उसमें इकोसिस्टम है, इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स हैं। बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, बच्चों को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, पेपर्स हमने साइंटिस्ट्स वाले बना के दिए हैं जनाब, और जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो खाली शीट्स हैं, बच्चों को पता ही नहीं तैयारी कैसे करनी है। समझ उसको ही ना जब आ रही। डिलीवरी पर आते हैं, या आप फैब्रिकेटेड चीजें तो बड़ी बना रहे हैं। कल मिनिस्टर साहब भी लगे हुए थे कि ये है वो है, हम ये ला रहे हैं वो ला रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिसी इन्होंने जो बनाई है, बच्चे को पास कर देते हैं, हर किसी को पास कर देते हैं। हाँ, ये हर सबसे गलती जिसको कि आता है मेरिट, टॉपर है, हाँ हीरो है। मेरिट जो है हम वो लोग कुछ भी नहीं है, जिससे फीस ली है उसको पास करना है। दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, ये तो मैंने देखा है। अब हम गांव का बच्चा भी पास ही होना है। जी 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 बोलें। Miss, yes, I think Lareb was discussing something. जी लारेब, आप बोलिए। I'm just waiting for her to. आपका माइक म्यूट हो गया। आयशा बरीरा थी या लारेब? पहले आयशा बोल रही थी ना, तो लारेब बोलना चाह रही। No, I think Aisha wants to say something. ठीक हो गया। जी, मैं यही बस कह रही थी कि हम लोग उसके एप्लीकेशन पर जब आते हैं, ये फैब्रिकेटेड चीजें दूर से बड़ी हसीन लगती हैं। हमारे वो बच्चे 0 रिजल्ट दे रहे हैं, और डबल ट्रेजेडी के वो खाली शीट है, और डबल ट्रेजेडी उसमें पास भी हो जाना है। अब पहले के बच्चे को भी कुछ नहीं आता, 8वीं के बच्चे को भी कुछ नहीं आता। अच्छा, हम 8वीं में रोते हैं कि पहले में पढ़ता, उस नाम लिखना नहीं आता, उसे यू के स्पेलिंग नहीं आते। यकीन करें, मेरे गांव में पोस्टिंग थी, लड़कों को पढ़ाती रही हूँ, लड़के वो पट्टे काटते हुए, चारा काटते हुए क्लास में और यू के स्पेलिंग तक तो आते नहीं थे। फैमिलीज बड़ी अच्छी थी उनकी, पीछे स्ट्रॉन्ग फैमिली गांव का। अच्छा, बड़ी भी बड़े अच्छे थे वो लड़के, बड़ी इज्जत की उन्होंने गांव के लड़कों ने। मैं फिर उनको पंजाबी में करा जाती, उनको मैं पास पंजाबी में करा देती थी उनको, हालांकि मैं इंग्लिश की टीचर। उन्होंने किया डिलीवर, उन पर मैंने मेहनत की, उन्होंने डिलीवर किया। नहीं तो अब ये फिर सैड रियलिटी है ना कि यहाँ पे फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात आती है कि ये भी सारा बात है। कंटेंट जो है हमारा खाली शीटों समेत हम उन्हें पास कर देंगे। हाँ, ये फिर 8वीं जमात के बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आ रहा, उसको अपना कुछ पता नहीं है। वो दाढ़ी मूंछों वाले लड़के बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े, और वो जो है उनको कुछ आता जाता ही नहीं, उन्हें पता नहीं कि ये क्या लिखा है। कॉम्प्रिहेंशन पेपर में डाली है, ये डाला वो डाला है, खाली पेपर अगले होंगे फिर वो। और हुआ क्या है, अब वही जो मेरी 8th क्लास थी 2016 में मैं पढ़ा रही थी, वो 8वीं क्लास इस वक्त घर बैठी है सारी, आधी से ज्यादा, आधी से भी ज्यादा, क्योंकि 9th में तो नहीं वो पास होंगे ना, वो बोर्ड में चले गए, अब जाके उन्हें ब्रेक लगी है। 1 क्लास से वो ब्लैंक पेजेस के साथ पास होते 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 लड़कियों की शादियां कर देते हैं लोग, लड़के आवारा निकल जाते हैं। ये हमारा एजुकेशन की ग्राउंड रियलिटी है। एसएनसी को क्या किसी को पता भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। वही बात है ना कि हम लोग असल में अब हमारी, अब आप तो एक बात कर रही है ना, जो हमें तो जिस तरह मैं अपनी बात करूं सिर्फ कि उस रियलिटी का पता ही नहीं है कि वहां कभी गए नहीं। हमारे सामने ये अर्बन सेटिंग की इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन सेटिंग्स के लोग हैं, तो हम इनके सामने बात करके, हम तो यहाँ के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्कूल का ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन कर लेते हैं ना, मगर जो हमारी 80% स्कूल्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो इसी तरह से रूरल एरियाज के जहाँ लोग हैं, तो वो ऑन पेपर तो अब ये हो गया ना कि हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, आप कहें जी 8वीं तक पास तो की हुई है ना, लेकिन वो कैपेबिलिटी कोई नहीं है उसकी 8वीं वाली, कुछ भी नहीं है वो। चलो आप ये नहीं कर सकते, आप स्कूल में कोई स्किल सिखा दें उन्हें, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ, अब जैसे है, हाँ टेक्निकल वोकेशनल स्किल्स की, हाँ वो सारी बात भी है, लेकिन मुझे अब ये बहुत ज्यादा रियलाइज होना शुरू हो गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी जी, आवाज थोड़ी सी डिले के साथ ही समझ नहीं आई जी, बात करें। मैं ये कह रही थी कि आपके लड़कों ने तो कुछ नहीं सीखा ना, इतनी सारी एनर्जी आपकी यूथ है, जवान लड़के बैठे हुए हैं 7वीं 8वीं के, उन्होंने स्कूल से सीखा तो कुछ भी नहीं है ना कोई स्किल सीखी है, ना कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, ना एनालिटिकल स्किल है, ना मैथ्स है, ना साइंस है। वो क्या डॉक्टर बनेंगे, क्या साइंस बनेंगे, वो मुल्क का क्या बनेंगे, आवारा फिरते रहेंगे। नहीं, अगर नहीं भी वो बनेंगे, अगर उन्होंने, मैं तो ये बात करती हूँ कि अगर उन्होंने अपने उसी रूरल सेटिंग में
बेशक जमींदारी करनी है, लेकिन हम जिस तरह की एजुकेशन पहुंचा रहे हैं हमें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ना। देयर इज नो हार्म कि वो 8वीं करके तो अपना काम करें, लेकिन फिर 8वीं करें तो फिर 8वीं पिंड का जो टीचर है, हाँ, पिंड का जो पुराना उस्ताद है मैडम, वो मारते क्या और सिगरेटें पीने और क्लासों में बैठ के, जो मैंने गांव में मर्दों का स्कूल था ना, मेरी हमेशा मर्दों में ही पोस्टिंग रही है, वहां पर हम पढ़ाते हैं। मैं एक ही औरत थी और 17 मेल्स थे, और क्रीम ब्लॉक हाई स्कूल के अंदर 70 मर्द थे मेल टीचर्स, और कोई हजारों में लड़कों की तादाद थी, और वो लोग क्लासों में जाते ही नहीं है। टीचर्स जाते हैं तो वो क्लास में बैठ के, एक टीचर को मैंने सोते हुए भी देखा है, एक टीचर सिगरेटें पी रहे थे। अजीब माहौल है यहाँ पे, और लड़के दीवारें फलांग के चले जाते थे। इतना बड़ा हाई स्कूल है वो, क्रीम ब्लॉक हाई स्कूल बॉयज। अच्छा, सही। फिर ये वही बात है ना कि अकाउंटेबिलिटी की बात आ गई, वो एहसास जिम्मेदारी की बात आ गई। तो अगेन वो फिर उनको ये भी एक सैड रियलिटी है जिसके जब एहसास होता है कि जी हमारी नौकरी पक्की है, हमें कोई क्या कहेगा, तो वो फिर कुछ भी नहीं करते। यस, और वो मर्द कहते हैं ओ मैडम जी छोड़ो, इन्होंने की पढ़ना है, इन्हें तो मेहनत करना फायदा कोई नहीं। मतलब आप जोन सा मर्जी सिलेबस ले आए, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे लें, दे आर नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम देयर। वो टीचर्स वहां से नहीं लेंगे, बच्चे का कोई कसूर नहीं है। इस असल में यहाँ पे प्रिंसिपल की भी जिम्मेदारी है कि प्रिंसिपल उसको चेक एंड बैलेंस करे, और एडमिन का बहुत रोल होता है। प्रिंसिपल की कभी कोई सुनता ही नहीं है। बस मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वो एक पूरा कल्चर एक इस तरह का अब आपने एक्सपीरियंस किया है, आपके सामने आया है कि जब वो नौकरी पक्की हो, उनको ये पता है कि हमें किसी ने क्या कह लेना है, तो वो फिर ऑब्वियसली इसको तो कोई सोचता नहीं ना कि बच्चा सफर कर रहा है। हर कोई ये देखता है कि अच्छा भाई मैं अपनी जान छुड़ाऊं। प्रिंसिपल की पोस्टिंग करा देते हैं, प्रिंसिपल की ट्रांसफर करा देते हैं टीचर्स पकड़ के। बट दिस इज, चलें वो एक और, अब अगेन वो एक अलग डिस्कशन, लेकिन बच्चा सफर कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर हमने, जिस तरह जुजाजा ने भी बात की कि चलें हम अगर कंटेंट पूरा डिलीवर नहीं कर सकते, अगर हम उतनी मेहनत नहीं कर सकते या जान छुड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन हम वो जो की एरियाज और की स्किल्स हैं, कम से कम उनकी उसमें कोई स्किल डेवलप हो जाए इस तरह की कि जो बच्चा उनमें से खुद करना चाहता है वो करे, तो दैट शुड बी अ फोकस ऑफ ईसीसी। और ऑब्वियसली अगर ये कि अर्ली चाइल्डहुड में इस तरह से हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, चलें अपनी हम करें, हम दूसरों की क्या बात अभी कर सकते हैं, अपनी करें, या कुछ इस तरह का सिस्टम इनिशिएट करें कि बच्चों को जब शुरू से ही, आप ये देख सकते हैं कि जिसको शुरू से पढ़ने की आदत हो या लर्न करने की आदत, क्यूरियोसिटी की आदत जिस बच्चे में हो, अगर वो बच्चा इस किस्म के स्कूल में जाएगा फिर अपनी वो डिससेटिस्फैक्शन शो करेगा और पेरेंट्स फिर खामोश नहीं रहेंगे। तो यानी यहाँ जो पूरी ईसीसी की इथॉस की बात भी की जा रही है, वो यही की जा रही है ना कि उनमें शुरू से ही इस किस्म की कैपेबिलिटीज डेवलप कर दी जाएं। ऑल्दो कि आप वो जो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हैं उसमें मुश्किल है, लेकिन स्टिल आपकी बात से तो बड़ी उम्मीद पैदा हो रही है मुझे, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हाँ नहीं उम्मीद यही ऑब्वियसली यही है ना कि हम तो अपने दायरा कार में रह सकते हैं ना, जितना अपना एक्सपीरियंस है, और ये कि जो एक कोई हमसे अच्छी बात सीख ले अगर, तो वो भी एक हमारी बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हमारे भी उस्ताद कई कहते हैं कि 70 की क्लास बैठी होती है, होते हैं उनमें से 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं कि जो आगे जाके कुछ करते हैं या वो वाकई हक अदा करते हैं लर्निंग का। तो चले अपनी हम टीचिंग जो होती है उन्हीं 1 या 2 की तरफ एम करें ना, हम ना ये देखें कि बाकी सब ने कुछ करना है या नहीं करना। दैट इज अप टू देम, एवरीवन हैज देयर ओन जर्नीज एंड एवरीवन हैज देयर ओन। और मैं तो बल्कि ये ज्यादती समझती हूँ इस किस्म की कि वो आप जिस तरह बात करती हैं, और ये मैंने अपनी जो पीएचडी की रिसर्च की तो उसमें मेरी रिसर्च थी टीचर आइडेंटिटी पे, तो टीचर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, और इसमें तो वो फिर मैंने काफी इन डेप्थ इंटरव्यूज किए। तो एक इसी तरह के पार्टिसिपेंट थे जो रूरल बैकग्राउंड से आए और अपने गाँव के वाहिद जो हैं आई थिंक इस तरह के थे कि जो जिन्होंने मास्टर्स किया और आगे पीएचडी किया, अब इस्लामाबाद की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वो जो है प्रोफेसर लगे हुए हैं। उन्होंने अपना जब जर्नी शो किया तो उन्होंने फिर ये कहा कि हमारी लिमिटेशंस इतनी थी कि हम लोगों ने यानी वही चारा काट के और वो खेतों में काम करके, पानी घर के लिए भर के, जानवरों का ख्याल रख के, और सब कुछ इतना कुछ करना भी होता था, स्कूल में भी पढ़ना होता था,
फिर उसी तरह होमवर्क करना, शाम को ये भी सब दोबारा कुछ बड़ी अच्छी चीज है, मैं इसको हाँ। जी नहीं ये नहीं कि मैं वैसे बात कर रही हूँ कि इसको वो तो स्किल है, लेकिन ऑब्वियसली जी एक छोटा बच्चा, हर किसी में स्किल नहीं होती कि इतने सारे टास्क मल्टीटास्किंग जी के साथ वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो फिर वो सपोर्ट जी सिस्टम जी भी होने चाहिए ना, कि चलें अगर हम ये सोच रहे जी हैं कि अच्छा भाई इन्होंने इधर ही काम करना है, फिर भी वो जो चंद साल स्कूल्स के हैं वो मीनिंगफुल बना दे ना, 10 साल तक उसको खींचे आप, बेशक वो 5वीं तक ही बच्चे पढ़ें, लेकिन वो 5वीं तक भी किसी काम का पढ़ें, जी और फिर पता हो पेरेंट्स को कि अच्छा भाई ये 5वीं तक पढ़ेंगे, कोई इनको अभी लोड कम करना है। लीडिंग जी 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 इसमें एक एक दो फैक्टर्स हैं जो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। आपने ये जो हैंडआउट दिखाया है, इसमें गोल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बिल्कुल। अब देखिए टीचर हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब हम टीचर को ही नहीं दे रहे तो स्टूडेंट से क्या हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सपेक्ट बिल्कुल करेंगे? ऐसे दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल अभी ऐसे मैं ही कल एक जॉब लेने गई, एक इट्स अ वेरी फेमस स्कूल ऑफ लाहौर, इंटरनेशनल स्कूल, और वो मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं? They are offering me 35,000 and in which I have to bear my expenses of traveling as well and working as a full-time teacher. अब बात ये है कि मैं यूईटी लाहौर में भी मैं विजिटिंग में पढ़ाती रही हूँ और कम पैसों पे मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैंने वो मुझे बच्चे कहते थे कि यू आर द ओनली टीचर जो बहुत रेगुलर क्लासेस लेती हैं और इतनी हमें मोटिवेशन से पढ़ाती हैं। लेकिन बात ये है कि उसके साथ मेरे पास एज था कि मैं वर्कशॉप्स भी ले सकती थी, मैं अपना लिविंग को बेयर कर सकती थी। यूईटी लाहौर के जो टाइमिंग्स थे वो मेरे साथ बहुत फ्लेक्सिबल थे। बिल्कुल अब बिल्कुल मेरा ऐसे मकसद कहने का है कि मिस हमने टीचर को एक तो ओवरवर्क कर दिया है, ओवरवर्क, और उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी कि वो दूसरी जॉब करके अपना गुजारा कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ, आई कंप्लीटली एग्री एंड अंडरस्टैंड। हाँ जी, फिर वो बहुत समझ के करते हैं ना, कारोबार बनाएगा ना, वो कारोबार बना लिया टीचिंग ना, कारोबार बनाएगा, वो साइड बिजनेस तो कोई नहीं कर सकता बेचारा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। प्रॉब्लम ये है कि हमने टीचर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि वो साइड बिजनेस कर सके, ताकि वो टीचिंग को बिजनेस ना बनाए। बिल्कुल। मतलब ये पॉइंट मेरे साथ कुछ एक दो ऐसी टीचर्स पढ़ रही थी व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, कि वो इसी तरह के किसी स्कूल में काम कर रही थी फुल टाइम, कि जहां से वो बेचारी 3:30-4 बजे तक फारिग होके घर जाती थी, और बाकी अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए उन्होंने ट्यूशंस रखी होती थी, और शाम को 3-3 4-4 सेशंस ऑफ ट्यूशंस। ये नहीं कि 3-4 बच्चे आ रहे हैं, कि नहीं कि पहले एक स्लॉट में इतने बच्चे आ रहे हैं, दूसरे स्लॉट में इतने, तीसरे स्लॉट में। तो फिर वो स्कूल में अपनी एनर्जी कंजर्व करती थी, क्योंकि शाम में भी उनको वो करना होता था। तो वो जितने घंटे स्कूल का काम, तो लेकिन ना उस मोटिवेशन से वो करते थे, बस काम चलाओ। तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन, अब हाँ ये तो बिल्कुल एक एग्रीड चीज है कि टीचर को ना ही वो रिस्पेक्ट है, ना ही वो उसकी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है, कि जिसकी वजह से टीचर एक फ्री होके अपनी परेशानियों से और दिल लगा के अपनी जॉब करें। ये तो मैं समझती हूँ पूरी बात, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी मस्कत में जो हेड हैं, वो हमारी टीचर्स को, एक हेड है हमारी जूनियर स्कूल की, वहां पे मैं जूनियर स्कूल में इतना अर्सा नहीं रही, आई वाज वर्किंग इन द सीनियर स्कूल ऑफ पाकिस्तान स्कूल। सही सही। वो क्या करती हैं कि शी ओवरबर्डन्स हर कॉलीग्स, शी ओवरबर्डन्स द टीचर्स वर्किंग अंडर हर, और वो कहती हैं फी सबीलिल्लाह। फिर मैंने एक दिन एक टीचर को वहां पे जवाब ये दिया कि अगर आप इसे फी सबीलिल्लाह समझते हो तो आप अपनी उन हेड से ये कहो कि एटलीस्ट आपको इतना एज जरूर दें कि उस फी सबीलिल्लाह के बजाय आप अपनी अर्निंग करके कुछ घर भी चला सको। मतलब एक तो आप अंडर पे कर रहे हो, फिर आप हर चीज को फी सबीलिल्लाह, हर चीज फी सबीलिल्लाह नहीं होती। मिस कुछ थोड़ा सा इंसान ने अपने लिए भी एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। कोई बिजनेस भी एक चीज है जिसकी आप हदीस में देखें कितनी तारीफ है, और मैं समझती हूँ टीचर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो साइड बिजनेस कर सके, ताकि तालीम बिजनेस ना बने। मतलब दिस इज माय पॉइंट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल ठीक है, रियलिटी की बात कर रही हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू द एसेंस ही, कि हम इसको अगर वैसे एज अ डॉक्यूमेंट देखें, और फिर मैं तो हमेशा से फिर ये प्रमोट करती हूँ, और आप लोगों से भी बात की, और मेरी पर्सनल भी जो फिलॉसफी रही है, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे सिमिलर तरह के लोग, सिमिलर तरह के लीडर्स मौजूद हैं, और इसी तरह की जो मैं कहूँगी अनफेयर प्रैक्टिसेस हर जगह मौजूद हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू हाउ वी कैन चेंज आवरसेल्व्स, हाउ वी कैन डेवलप आवर कैपेसिटीज, कि हम अपनी जो है वो, और फिर मैंने ये तो जरूर देखा है, और आप लोगों ने भी देखा है, कि अगर यानी डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस दिल लगा के आप काम करें, मेहनत से करें, इट कम्स बैक टू यू in other forms, maybe not in monetary ways but in other forms.
तो वो चीज तो हम देख रहे हैं और इसीलिए फिर हम हाँ जी इसको हम करिकुलम को भी देख रहे हैं। तो इसमें बस कल हमने जहां तक बात की थी उसके आगे थोड़ा सा की एरियाज को थोड़ा सा फिर देख लें जल्दी से, और उसके बाद अगर कोई और भी अपनी जिन्होंने देखा है इस डॉक्यूमेंट को वो अपनी शेयर करें चीजें, तो मोस्ट वेलकम। मिस आई थिंक ये डॉक्यूमेंट इस लिहाज से फ्रूटफुल है कि ये ग्लोबल स्किल्स पे फोकस कर रहा है। जी जी, इट इज फोकसिंग ऑन ग्लोबल स्किल्स। बिल्कुल। अब देखिए ग्लोबल स्किल्स हम अपने टीचर्स को नहीं सिखाते। मसलन ये कि देखिए हमारा की एरिया जो है, मैं आईबी करिकुलम में जब से पढ़ा रही हूँ, उन्होंने एक तो हमें क्रिएटिविटी पे फोकस करने को कहा है स्टूडेंट्स की, क्रिएटिविटी, दूसरी इमोशनल वेलबीइंग, तीसरी जो चीज आती है वो इसमें कोलैबोरेशन आती है, चौथी चीज इसमें आती है कम्युनिकेशन, और एक और चीज इसमें आती है वो आती है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब ये चीजें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं ऑल ओवर, तो वो आईबी करिकुलम वाले, हमें यही मुझे बात उनकी इतनी अच्छी लगी इस स्कूल की कि दे आर गिविंग अस अ फ्री हैंड टू टीच ऑल दीस स्किल्स टू चिल्ड्रन। बिल्कुल, एंड दे आर मॉनिटरिंग। और वही जो 21st सेंचुरी स्किल्स में ये सारी ही आती हैं, खासतौर पे क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो हर जगह जो कोर एक है। और उसके बाद क्योंकि ईसीसी का सिनेरियो है तो यहाँ पे हम डिफरेंट डेवलपमेंटल डोमेन्स को भी देखें, तो मेरे हिसाब से तो अगर टीचर का हम सिंप्लीफाई करके कंटेंट जो है हम बेसिक लिटरेसी डेवलप कर दें, न्यूमरेसी डेवलप कर दें और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर दें ना, तो बच्चों के लिए वही बेस एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए काफी है। तो अब जिस तरह हमने कल भी देखा इसमें ये कि इसमें भी उन्होंने डिफरेंट बेंचमार्क्स जो है वो इन सारी कॉम्पिटेंसीज के अराउंड दिए हुए हैं, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने आगे हर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में ये भी बताया है कि एंड ऑफ द ईयर पे बच्चा क्या कर सकेगा उसकी भी डिवीजन है, और फिर ये कि टीचर किस तरह से उसको क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकती है और किस किस्म की उसकी प्रैक्टिसेस रही हैं। तो इसी चीज ने जो है वो किया था मुझे काफी इंस्पायर कि हम इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें। और लिटरेसी की जो स्किल्स हैं उसमें भी अगर आप देखें तो लिसनिंग, स्पीकिंग की उसकी अलग सारे बेंचमार्क्स एंड कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं। तो और फिर वो जो हम बात करते हैं कोलैबोरेशन की, कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, वो हम यहाँ से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वो इन लैंग्वेज स्किल्स के साथ साथ हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आगे जाके इस मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे स्टीम एजुकेशन की, कि जिस तरह से स्टीम एजुकेशन के थ्रू मैंने देखा है कि काफी ये जो सारी स्किल्स हैं हम उनको इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो that's true. और हमने अब जो है यहाँ पे लाहौर कॉलेज में जो है वो अभी स्टीम एजुकेशन का एक पूरा मॉड्यूल डेवलप भी किया है और बीएड लेवल पे हमने इंट्रोड्यूस भी कराया है। सेमेस्टर 6 पिछले साल अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क किया, और वो टीचर्स जो हैं वो स्टीम एजुकेशन में काफी माशाल्लाह। ये स्टीम एजुकेशन आपने बताया, ये मुझे समझ नहीं आई किस तरह है। ये मैं अभी बताती हूँ, ये सेशन खत्म होने लगा, इसको रीजॉइन करते हैं। ये कैसे काम करते हैं मैं अभी बताती हूँ। यस मैम।